So good morning everyone. Again we are back with exercise 6.3. Till now we have completed how many questions? 14 questions of this exercise, and today we have to start with question number 15, right? Where we are using the criteria of similarity that you all very well know that we are using three criteria of similarity: side, 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 angle, 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 and side, angle, side, right? So here your question is, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter. एक पोल 6 मीटर का है और उसकी शेडो 4 मीटर की है, राइट? एट द सेम टाइम यू हैव टू टेल cast a shadow of 28 meter long. At the same time, a tower cast a shadow of 28 meter long, and we have to find out the height of the shadow. एक ही टाइम पर दो चीजें हैं आपके पास, एक तो है पोल और एक है टावर, ठीक है? टावर लंबी होती है और जो पोल है आपका दैट इज 6 मीटर, एंड दे आर सेइंग इसकी जो शेडो है दैट इज 4 मीटर. शेडो 4 मीटर. वी आर सपोजिंग द सन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? अगर सन की लाइट ऐसे पड़ रही है तो शेडो आपकी ये बनेगी, ठीक है? शेडो कैसे बनती है? जब आपकी लाइट के रास्ते में, पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो उसके पाथ में ये ऑब्स्टेकल आ गई तो ये इसकी शेडो बन गई, और ये शेडो है 4 मीटर लॉन्ग. लेंथ ऑफ शेडो किस पे डिपेंड करती है? एंगल पे, कि किस एंगल से लाइट आ रही है, राइट? तो यहाँ पर आप इसको अगर ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है? सिमिलरली ये आपका पोल है, सॉरी टावर है, एंड इट्स शेडो इज 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है? शेडो 28 मीटर लॉन्ग है. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. मतलब आपने ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है? इस टाइम पर दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों सेम टाइम पर है आपकी. अगर सेम टाइम पर है तो सन जो है दोनों के लिए सेम एंगल पर होगा, ठीक है? सन का एंगल सेम होगा. सेम होगा मतलब जिस एंगल से इस पे लाइट आ रही है उसी एंगल से इसके ऊपर भी लाइट आ रही है, राइट? तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा होगा. इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ सन, कि सन का किस एंगल पर लाइट आपके पास आ रही है, राइट? So this is angle of sun. If this is theta in this case, it will be theta in this case also. For every object it will remain same for a particular time. अगर 30 डिग्री है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए 30 रहेगा. अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए 60 है, दूसरे के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए वो 60 ही रहेगा, राइट? And after that, this angle is equal to this angle because the pole is standing vertical and the tower is also standing vertical. So what can we say about triangle ABC and triangle PQR? What can you say about these? Here you have angle C is equal to angle R. They are angle of sun. Yes, sun angle. And angle B is equal to angle Q. Both are 90 degree. What can we say about triangle ABC and triangle PQR? Both are बोलो भाई, गौतम बोलो. Both the triangles will be similar by angle. Yes, both by angle similarity, ठीक है? और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, what can we say? Their sides will be proportional, ठीक है? तो by CPST we will say that BC upon क्या लिखूं? जल्दी बताओ. BC upon what? BC upon RQ या QR is equal to AB upon PQ. Now let me put the values. BC आपकी कितनी है? 4 and QR is 28 is equal to AB is 28. 6 AB is 6 and PQ we have to find out. फटाफट से वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितनी आएगी.
42 42 42 meter. Yes. meter. So the height of the tower is, नेटवर्क इशू हो रहा थोड़ा. हाँ एक मिनट. Yes. So we will say that the height of the tower will be 42 meter. ठीक है. This was your question number 15. Copies भी आप लोगों ने साथ के साथ बनानी है and you have to do all the questions in your notebook so that when you revise you can do the questions easily. 16th question is, if AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR. You are again given two triangles ABC and triangle PQR. In the two triangles you are given the medians A, B, C and this is PQR. यहाँ पर आपकी मिड पॉइंट को ज्वाइन किया. दिस इज AD median and other median is PM. Okay, this is the median and they are saying both the triangles are similar also. ABC and PQR both are similar. We have to show that AB upon PQ is equal to AD upon PM. AB upon PQ is equal to AD upon PM. This we have to prove. ठीक है. And you are given, एक तो medians given है, that AD is the median, so we can say that BD is equal to DC. PM is also the median, so this is the midpoint. We can say that QM is equal to MR. What else is given? Both the triangles are given to you to be similar. ABC, similar triangle PQR. ठीक है. This is given to you. Now we have to show that AB upon PQ is equal to AD upon PM. ये देख लेते हैं हमारे पास ये कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं. अगर हमारे पास जिन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है अगर वो सिमिलर हम किसी तरह से प्रूव कर दें, then by CPST we will be able to say that AB upon PQ is equal to AD upon PM. So let me see AB, PQ, AD, PM. तो कौन से दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी करनी पड़ेगी आपको? ABD and PQM. Yes, you will have to prove the similarity of ABD and PQM. अच्छा, ABD और PQM में क्या क्या हम इक्वल लिख सकते हैं? Angle B equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. क्यों? Because ABC वो क्या बोलते हैं वो है similar to yes. PQR. You are given ABC similar PQR, so angle B is equal to angle Q. ठीक है, एक एंगल तो आपके पास आ गया. उसके अलावा अब हमें बाकी लेनी पड़ेंगी साइड्स. ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल में अब ये वाला एंगल आ रहा है, इसका हमें नहीं पता कि इक्वल है या नहीं है. ये एंगल आ रहा है, हमें पूरे का तो पता है बट हमें ये नहीं पता कि ये हाफ हाफ हुए हैं इससे या नहीं. अगर हाफ हाफ हुए होते तो हम सीधा कह देते, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता ना तो आप सीधा कह देते कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि बड़ा इक्वल है इसलिए उनका आधा इक्वल है. बट ये वाले एंगल्स इक्वल हम नहीं कह सकते, वी डू नॉट नो. ठीक है, तो एंगल्स की तो बात खत्म हो गई कि एंगल तो हम कह नहीं सकते कि ये इक्वल है. सो वी विल हैव टू गो टू द साइड्स. अब अगर साइड्स की बात करें, हमारे पास बड़े वाले ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है. तो आई कैन से दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. लिख सकते हैं? क्योंकि आपके पास ABC और PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो वी कैन से दैट एंगल B is equal to angle Q and the ratio of the sides AB upon PQ is equal to BC upon QR. AB upon PQ is equal to BC upon QR. ठीक है, बट मुझे AB upon PQ तो चाहिए क्योंकि मुझे इन दो ट्राइंगल्स की बात करनी है, बट मुझे BC upon QR नहीं चाहिए. At the place of BC, what do I want? BC की जगह मुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो. Half of BC. हाफ ऑफ BC. BD चाहिए बेटा.
BC की जगह मुझे BC नहीं चाहिए बिकॉज आई हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी ऑफ दिस स्मॉलर ट्राइंगल। तो मुझे BC नहीं चाहिए, आई वांट BD। और BD क्या है? BD एंड BC दे आर इक्वल, सो आई कैन राइट Yes. BC इज इक्वल टू डबल ऑफ बोलते ही नहीं आप तो। समझ नहीं आया क्या बता गए आप। हम्म, क्या एक बार रिपीट करना है क्या बोला था? माय क्वेश्चन वाज, मैंने ये कहा था कि हम इन छोटे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं बड़े वाले ट्राइंगल्स जो मुझे गिवन है मैं वहां से रिजल्ट निकाल रही हूँ। आई हैव बीन गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, तो ये होना चाहिए AB अपॉन PQ, इन दो साइड्स का रेशियो और इन दो साइड्स का रेशियो इक्वल। बट मुझे छोटे वाले ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, तो ये तो ओके है, चलेगा। बट ये पूरी साइड नहीं चाहिए, पूरी साइड की जगह मुझे क्या चाहिए? ओनली BD, और QR की जगह चाहिए सिर्फ QM, ठीक है। तो मैंने BC को लिख दिया डबल ऑफ BD, क्योंकि BD और DC दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली मैंने QR को लिखा है डबल ऑफ QM। That means what can I write? AB upon PQ is equal to BD upon QM, क्योंकि उससे 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। मैम बट हाफ ऑफ BC भी कर सकते थे ना इसको, हाँ, हाफ बिल्कुल। ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR कर देते हैं, फिर आप हाफ ऑफ BC को BD लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुंदरम। Yes, नाउ फ्रॉम 1 and 2 what can we say? साइड एंगल साइड। Yes, बिल्कुल ठीक है। ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय SAS, क्योंकि ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, और इसके बीच वाला एंगल भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। सो बाय साइड ये हो गई आपकी सिमिलैरिटी। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा, वीडियो बंद हो गया। हाँ, वो मयंक ने लिखा दैट द स्क्रीन इज नॉट क्लियर, सो ट्राइंग टू रिफ्रेश द सिस्टम। हो गया? चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है मयंक? Yes, मयंक आपको भी ठीक है? अब चलिए, लेट वी कंटिन्यू। सो वी आर सेइंग दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गई, मुझे पहुंचना तो यहाँ तक था, ठीक है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अगर ये दोनों सिमिलर हो गई तो मैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM लिख दूं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM बाय CPST, ठीक है। इसके बाद मैंने ये रिजल्ट लिखा है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें अब आपको ये रिजल्ट अपने माइंड में भी रखना है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती है ना, तो अभी तक हमने किया था अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हमने ये प्रूव किया है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स तो इक्वल होती हैं प्रोपोर्शनल, उसके साथ साथ उनकी मीडियन भी उसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाती है, साइड्स के साथ ही। जो रेशियो साइड्स का होता है वही रेशियो मीडियंस का भी आता है, और यही चीज आप प्रूव कर सकते हो कि वही का वही रेशियो उसमें परपेंडिकुलर्स का भी आता है। अगर आप ऑल्टीट्यूड ले लो ना ट्राइंगल्स में, तो उनका भी रेशियो सेम रहता है। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ये वीडियो दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलिए। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 17। खत्म हो गया ना? अच्छा, ओके ओके, दिस इज फिनिश्ड। अब आप जो रिजल्ट यूज करोगे वो ये होगा कि आपका अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, इफ ABC is similar to triangle PQR, then area of ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। अभी तक तो हम सिर्फ साइड्स के रेशियो की बात करते थे कि अगर ट्राइंगल्स सेम है, सिमिलर है, तो उनकी साइड्स के रेशियो
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये होगा। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ इसकी बात करते थे, बट नाउ वी आर सेइंग कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने रेशियो ले लिया उनके एरिया का भी। अगर आपने एरियाज का रेशियो ले लिया ना, तो यहाँ पर ये सिर्फ साइड्स के रेशियो के इक्वल नहीं रहेगा। क्या चेंज आएगा, कैन एनीबॉडी टेल? तो ये क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारी साइड्स के रेशियो सेम है, बट अगर आप एरिया का रेशियो लेते हो तो एरिया के रेशियो में ये जो सारी साइड्स के रेशियोज हैं इन सब के ऊपर स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा 2D होता है, एरिया में L इंटू बी, दो चीजों की बात करते हैं ना, तो साइड्स का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि दो साइड्स आ गई। जैसे अगर स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड। ठीक है, तो डायमेंशन 2 डायमेंशनल हो जाती है चीज अगर आप एरिया की बात कर रहे हो, और 2 डायमेंशंस हैं तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है इस केस में। सो सिर्फ अब आपने ये रिजल्ट याद रखना है। इस रिजल्ट के बिहाफ पर हम अगली पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको अगर इतना समझ में आया है तो मुझे ये बता दो कि मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसका एरिया है 121, इसका एरिया है 64। ठीक है, तो इनकी साइड्स का रेशियो कितना आएगा? सपोज ये ए बी सी है, दिस इज पी क्यू आर, आपके पास एरिया ए बी सी गिवन है 121, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 64। अब मुझे बता दो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा? अभी आपको रिजल्ट बताया है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल is equal to square of the side of first and square of the side of second. Anybody doing? या मुझे समझाना है? जल्दी से बता दो, बस इतना बता दो, डू आई हैव टू डू और यू आर डूइंग? चलो ये मैं करती हूँ, फिर अगला बताओगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल? 121, तो यहाँ लिख दो आप 121। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल? 64। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मैं इसको पूरे का स्क्वायर लिख दूं? अब बताएगा कोई? स्क्वायर को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो ये हो गया रूट, अंडर द रूट 121 अपॉन 64 is equal to AB upon PQ. What is the root of 121? वीडियो 11 स्टॉप हुआ पड़ा है स्क्रीन पे। स्टॉप हुआ पड़ा है? मेरी तरफ से तो सही चल रहा है। मेरी तरफ तो स्टॉप हुआ था। हाँ अब ठीक है, ठीक है, क्लियर। मेरी तरफ की दिक्कत। ओके, मैम 121 का 11 और 64 का 8। तो आपकी साइड्स का रेशियो कितना आ गया? 11 अपॉन 8। ठीक है, अब एक बार एक क्वेश्चन और बता दो। अगर आपके पास जो एरियाज हैं दे आर 81 एंड हियर दिस इज 100 ले लो, 144। what will be the ratio of their sides? 9/10. 10 upon 9। 9 upon 10। मैम 9 ठीक है, ठीक है, 9 upon 10। बिल्कुल ठीक है। 9 upon 10 will be the ratio of the area of the sides। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। अगर मेरे पास साइड्स का रेशियो 4:9 है, what will be the ratio of the areas? 64 मैम 69। मैम 16 और 64 कहाँ से आ गया बेटा? 16 आएगा ना मैम 16 और यस सॉरी मैम 81। 81।
मैम 81। 16 81। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साइड्स का गिवन है तो एरिया के लिए स्क्वायर कर दो, एरिया का गिवन है तो साइड्स के लिए उसका रूट कर दो। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक साइड भी दे दी। दे आर सेइंग द एरियाज आर 64 and 121 and the side is triangle they are saying DEF. 15.4 Yes, ABC, EF this is 15.4 DEF, and you are given that EF is equal to 15.4. We have to find out the value of BC. बता दो। मैम 11.2 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, मैम EF स्क्वायर। मैम 11.2। बिल्कुल ठीक है बेटा। ये आपका ABC का एरिया है 64, ये है 121, BC इज नहीं गिवन है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, एंड दिस इज 15.4 और ये इसका है स्क्वायर। ठीक है, चाहे अलग अलग लिखो स्क्वायर या इकट्ठा कर दो, एक ही बात है। स्क्वायर को हम इधर ले आए तो ये हो गया इसका रूट 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। ठीक है, अब आपने BC की वैल्यू निकालनी है, so shift this 15.4 on this side, you will get BC is equal to 8/11 multiply 15.4 and if you remove the decimal तो आपका नीचे आ गया 10। इसको आपने कैंसिल किया 14 से। ठीक है, 11 14 जा 154 एंड 14 को 8 से मल्टीप्लाई करो 112 अपॉन 10, so this is 11.2 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मीटर या सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेंटीमीटर आएगा बिकॉज इन क्वेश्चन द एरियाज आर इन सेंटीमीटर्स, सो इट विल बी सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स ले लूंगी। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O if AB is equal to double of CD। ट्रेपीजियम की बात हो रही है, ABCD, AB और CD आपस में पैरेलल हैं, डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। AB इज डबल ऑफ CD, AB CD से डबल है, तो बड़ी कौन सी हुई, AB या CD? हाँ जी, कौन सी बड़ी हुई? AB बड़ी हो गई, तो मैंने इस बड़े वाली को नाम दे दिया AB और आगे कंटिन्यू कर दिया CD। यू आर गिवन AB इज इक्वल टू डबल ऑफ CD। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ AOB एंड COD। एरिया AOB और COD का एरिया का रेशियो, रेशियो मतलब दोनों का डिवाइड। ठीक है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जब एरियाज की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि एरियाज का रेशियो साइड्स की रेशियोज के स्क्वायर्स के इक्वल होता है, उससे पहले हमारे पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इन दोनों की सिमिलैरिटी। बताओ जरा। AOB और COD में वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों। यस, AOB COD दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और OAB और OCD अल्टरनेट। ये वाला एंगल OAB एंड OCD, ये वाले 1 और 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो AOB है और ट्राइंगल COD है, ये दोनों हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब अगर सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो गया, एरियाज का रेशियो किसके इक्वल हो गया, अपॉन DC स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ठीक है, साइड्स के रेशियोज के इक्वल, AOB में से AB एंड फ्रॉम COD वी आर टेकिंग द साइड CD। अब जो हमें ये रिजल्ट गिवन था, अब इसका यूज कर लो। क्या करूं, कैसे यूज करूं, AB इज डबल ऑफ CD, तो AB की जगह 2CD और इसका स्क्वायर नीचे
सी डी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4/1। बिल्कुल ठीक है, इससे सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, आपका आंसर आ गया 4:1। ठीक है, तो इस तरह से हमने अप्लाई करनी है अपनी एरिया थ्योरम। इस एरिया थ्योरम का आपका पहले एग्जाम में थी ये, बट अब एग्जाम से इसका प्रूफ जा चुका है, बट इसकी एक्सरसाइज आनी है। ठीक है, सो दिस वे वी हैव टू अप्लाई एरिया थ्योरम।